Good morning, dear students. So today we are back again with the next part of the video, that is the separation techniques part 3. Okay, so in this part student we will be studying about the remaining separation techniques. So let's get started. The technique which we'll be studying today would be the evaporation. I hope इवेपोरेशन आप सभी ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है. यस. सो व्हाट कुड बी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन? बताइए. यस, जैसे कि आपने मेरे को क्लास में बताया था इवेपोरेशन के बारे में, हम उसी बेसलाइन को लेके आगे बढ़ते हैं. ओके. So the simplest definition of evaporation could be that evaporation is a process in which the liquid gets converted into vapors. Okay, so with this baseline, let's see that how this separation method is being used for separation of mixtures. Okay, so here's an activity which is showing that how you can separate the volatile solvent by the method of evaporation. Okay, so what you all need for this is a beaker, a watch glass, a burner, water and some blue ink. Okay, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, द प्रोसीजर ऑफ द एक्टिविटी कुड बी कि फर्स्टली यू विल फिल अ बीकर विद वाटर एंड देन यू विल कवर इट विद अ वॉच ग्लास. After that, what you will do, you will put few drops of ink on that and you will heat it, right? Is that clear? तो आप जब उसको हीट करोगे तो आप देखोगे that evaporation will start. And what will happen when evaporation start, you can see that the vapors gets collected on the watch glass. Okay, so the observation could be that the water gets evaporated from the watch glass and left no residue. Therefore, it is not a single substance but a mixture of dye in water. यानी कि जो आपके पास मिक्सचर था वो डाई का मिक्सचर था वाटर में, and there was no remaining substance which was left over there. Okay, so this was a activity which is given in your books also. Apart from this, the basic line which I would like to tell you that ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आप यूज़ करते हो on large scale to obtain common salt also from sea water. होता है या नहीं होता है? Evaporation is basically used to obtain the common salt from sea water. और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका सी वाटर होता है वो ट्रैप किया जाता है, शैलो लेक्स बना दी जाती हैं स्टैंड्स के. उसके बाद जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे होगे कि यू कैन सी दैट हाउ इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स. तो इसके बाद व्हाट हैपन, द हीट ऑफ सन ग्रेजुअली इवेपोरेट्स द वाटर इन द शैलो लेक्स एंड व्हाट यू विल सी, जो कॉमन सॉल्ट होता है आपका, इट इज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर. ओके, and always remember that the use of the process of evaporation is for separating a mixture which is based on the fact that liquids vaporize easily whereas solids do not vaporize easily. ठीक है, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो काफ़ी ईजिली वेपराइज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. इसीलिए ये मेथड बेसिकली यूज़ होता है फॉर चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी some more facts about evaporation. So evaporation is a type of vaporization of a liquid that occurs only on the surface of liquid, and as you know, in this process the liquids get converted into vapors. Okay, so as you studied in your chapter 1 also, I have taught you the factors which affect evaporation and the applications of it.
So you can see the applications could be when you dry the clothes on a laundry line, even though the temperature is below the boiling point of water, the water evaporates from the clothes and the clothes get dried. Okay, so इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, लाइक जो सी वाटर का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं इवेपोरेशन के. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Okay, so ensure that you are reading this content from page number 92 and 93 in your books. Now moving ahead, students, to the next part, which is crystallization. So listen to me very clearly. The content on the slide could not be clear, but आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ठीक है. तो अब समझिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है. आई विल मेक यू एक्सप्लेन दैट. अब देखिए, वो प्रोसेस जिसमें आप किसी भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं, आफ्टर हीटिंग इट यू ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम इट. ओके, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. बिकॉज what you are forming crystals from that particular substance. ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और आप उसको हीट कर रहे हो, उसके सोल्यूशन को, एंड देन सडनली यू आर कूलिंग इट डाउन, देन व्हाट यू विल रिसीव द क्रिस्टल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. इज दैट क्लियर? एंड दिस प्रोसेस is basically used to, yes, the process is basically used for the purification of the substances. And you can see that the most common example which is seen in crystallization is to obtain pure copper sulfate from impure sample. Okay, and you can see that how crystals are being formed in this slide. आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि क्रिस्टल्स किस तरीके से बन रहे हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये होता है आपका प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का. इसमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल. तो आप देखिए, आप क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है उसको यूज़ करके इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई कर सकते हो टू गेट दी प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ओके, और दी प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, यू टेक अ चाइना डिश एंड उसमें आप 10 grams ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हो एंड यू आर डिजॉल्विंग इट इनटू दी वाटर. ओके, एंड उससे आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना लोगे. जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना लोगे, व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट, राइट? एंड आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज यू विल अलाउ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू get heated on a Bunsen burner with the help of a tripod stand. And आप देखोगे थोड़े टाइम बाद जब वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड, तो थोड़ी देर बाद यू विल अलाउ इट टू कूल. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल अलाउ इट टू कूल, after some time you can see that the crystals of pure copper sulfate solutions are formed and the impurities are remain behind in the solution. तो जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, वो प्योर होंगे कॉपर सल्फेट के, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दे विल बी लेफ्ट इन द सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्क्स एंड इट्स ऑल अबाउट. ओके, so basically this separation technique results in the formation of pure solid particles from a solution containing the dissolved substance. Okay, क्योंकि आपने क्या देखा, आपको प्योर सॉलिड पार्टिकल मिला था, डिजॉल्व सब्सटेंस क्या था, कॉपर सल्फेट, उसका आपको प्योर सब्सटेंस मिला, प्योर पार्ट मिला नहीं मिला,
Yes. Okay, good. Now, moving ahead to the next part, which is chromatography. So students, before letting you know what is chromatography, I just wanted to tell you that chromatography वो टेक्निक होती है जो कि यूज़ होती है टू सेपरेट दी सॉल्यूट्स डेट आर डिजॉल्व इन दी सेम सॉल्वेंट। यानी एक ही सॉल्वेंट में अगर आपने काफ़ी सारे सॉल्यूट्स डिजॉल्व कर रखे हैं तो आप इजीली विद दिस मेथड आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, so let's study what is chromatography. So it is the process of separation of component of a mixture is known as chromatography, or else you can state that chromatography एक ऐसी टेक्निक होती है which is used for separating two or more dissolved solids which are present in the solution in very small quantity। यानी कि आपके पास अगर कोई solution है और उसमें दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स डिज़ोल्व करे गए हैं तो आप इजीली उन सॉलिड्स के बारे में पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, एंड ये मेथड जो है क्रोमेटोग्राफी, इसके एप्लीकेशंस हैं दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, यानी कि डाइज और पिगमेंट्स में यूज़ होता है। ये क्रोमेटोग्राफी मेथड फॉरेंसिक लैब्स में यूज़ होता है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस में आप क्लियरली पता कर पाओ कि कौन सा सब्सटेंस कितना था, उसका कितना अमाउंट था, तो ये मेथड यूज़ होता है। तो ये जो मैंने आपको बताई हैं ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो पेपर आप यूज़ करते हैं टू स्पॉट द कलर्ड और टू सेपरेट द कलर्ड स्पॉट्स, उसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। क्या कहते हैं उसको हम? क्रोमैटोग्राम। इज़ दैट क्लियर? तो क्रोमैटोग्राम आप यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी। Okay, so the example which is been given in your books is that the black ink, जो कि mixture है several colored substances का, it could be used to separate by the paper chromatography method. Okay, and there is the proper description that how you can separate the dyes which are present in the black ink. Is that clear? ऑल्सो ये जो आपका सेपरेशन मेथड है क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं सेम सॉल्वेंट में तो उनकी सॉल्युबिलिटीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जब उनकी सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं तो यू कैन ईजीली मेक इट आउट कि आप इजीली उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, I hope this is clear. Okay, now let's read out from this slide also that the method is being used for separating solutes that dissolve in the same solvent and the separate components of a mixture based on the ability of each component to be drawn across the surface of every material. जो मैंने आपको अभी बातें बताई थी that is been written on this slide only. अब देख लीजिए, there is a very good sample which is also given to you. दिस इज़ योर क्रोमेटोग्राम, यानी वो पेपर जिस पे आप कलर्ड स्पॉट्स देख पाते हैं ये कहलाता है आपका क्रोमैटोग्राम एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज क्रोमैटोग्राफी। तो आप देख पा रहे हो इस पे कि डिफरेंट कलर्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन हो गया, इसमें येलो है। तो इसी तरीके से आप डिटेक्ट कर पाते हो और सेपरेट कर पाते हो। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? Okay, now moving ahead to the next part, which is your next separation technique is distillation. Before moving with distillation, I am giving you 2 minutes to quickly read on this slide and after that I will be explaining you. Okay? Yes, very good.
So students, let's get started with the next separation technique, which is distillation. And as you all know that distillation is the process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back the liquid. यानी कि सिमिलरली ये एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, लिक्विड को कन्वर्ट करते हो वेपर्स में एंड वेपर्स को कन्वर्ट करते हो आप लिक्विड्स में, राइट? इज दैट क्लियर? बताइए. यस. सो सिमिलरली जैसा कि आपने देखा था, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू इवेपोरेशन ओनली, राइट? तो इवेपोरेशन में जैसे आपने देखा था, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स. सिमिलरली ये सिमिलर है बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम. रीड द मेन लाइन. आप ध्यान से देखिए, जो मेन बोल्ड लाइन है इसकी डिस्टिलेशन की वो क्या है. वो ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म अ वेपर. यानी कि आप लिक्विड को हीट कर रहे हो to get the vapor and you are again cooling the vapor to get back the liquid. Okay, so I hope this is clear now. And the liquid which is obtained by condensing the vapor is called distillate. यानी कि जो आपको लिक्विड मिलता है जो वेपर्स को कंडेंस करने के बाद, इट इज़ नोन एज डिस्टिलेट. Okay, and the process in which the components of a substance or liquid mixture are separated by heating it to a certain temperature and condensing, then the resulting vapors are being formed. Okay, and moving ahead students, and letting you know about more facts about distillation. आप ये इसका डायग्राम है, प्लीज़ मार्क इट आउट कि आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे. ओके, एंड एज यू नो कि जो आपका प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द टैप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, राइट? और आपका यही प्रोसेस यूज़ होता है फॉर ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मैनी कंट्रीज. ओके, now you will see that distillation is been divided into two categories, or it is been used to separate the mixtures by following two methods, जिसमें आपका पहला होगा fractional distillation and the next could be the separating funnel, जो कि आप आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है? इज दैट क्लियर? So in this slide there is an activity which has been given that how you will be separating the mixtures by distillation. Okay, कि आप कैसे separate करते हो the mixture of alcohol and water from their solution. And the procedure could be, you can see that the distillation flask है ये which is been fitted on the fractionating column. तो ये आपका क्या है? distillation flask है और ये आपके फ्रैक्शनल कॉलम से सेटअप किया गया है. ठीक है. नाउ व्हाट यू विल सी दैट देयर इज अ थर्मोमीटर बीइंग अरेंज्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. नाउ यू विल हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर रीडिंग. यानी कि आप जो मिक्सचर है उसको हीट करोगे बट यू हैव टू क्लोजली ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑल्सो इन द थर्मोमीटर. नाउ द एल्कोहल evaporates and condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet. यानी कि आप देख सकते हो ये जो आपका कंडेंसर आउटलेट है, दिस वन, आप इसमें क्या देख सकते हो, जो अल्कोहल होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है बट जो मिक्सचर है आप देख रहे हो इट कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड इट कुड बी कलेक्टेड इन द कंडेंसर आउटलेट. Okay, and the water is being left behind in the distillation flask और जो अल्कोहल होता है वो इवेपोरेट कर जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट डिस्टिलेशन एंड
एज आई हैव टोल्ड यू, ये मेथड यूज़ होता है सेवरल कंट्रीज़ में टू ऑब्टेन प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सी वाटर्स। और आप पढ़ेंगे आगे, अभी इसमें यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मिक्सचर्स कंटेनिंग टू लिक्विड्स विच कुड बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? So we'll be studying about the next part, that is the fractional distillation, in the next video. So till then, I hope students it is clear till here, and please read it out from your books also. This video is basically to give you an overview or a gist of the chapter, but it is mandatory to read thoroughly from your books so that the content could be clear to you. Okay, so listen up to the video and read it from your books, and in case you have any doubt, you can ask me in the class tomorrow. Okay, thank you students, and have a good day. We'll meet in the next video again with some more separation techniques.